Hello everyone. Now today I am going to discuss the topic set theory of class 11th. This is the very first chapter of class 11th syllabus, set theory. The chapter 1, class 11th. Till class 10th, students had studied different topics, but this topic, set theory, is totally new. This is totally new. This topic is totally new for class 11 students. Till now you haven't, till class 10 you haven't studied chapter like this, set theory. This is different chapter. Now I am starting the chapter set. The very first thing about this is the definition. Definition of set. Definition of a set. Definition of a set. So its definition is, it is the collection. What is set? Set is the collection of well defined objects. It is the collection of well defined objects. Collection सबको पता है क्या होता है. What is collection? ऑब्जेक्ट्स भी पता है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आएगा, नंबर्स आएंगे, पर्सन्स आएंगे, व्हाटएवर इट इज. बस एक यहाँ पर नई टर्म आई है, वेल डिफाइंड. ये समझना जरूरी है. वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का ही रोल है इसके अंदर, सेट के अंदर. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सिर्फ कि वेल डिफाइंड नई चीज है, बट व्हाट इज वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड को अगर समझना है तो सिंपल सी बात है, ये समझना है, वेल डिफाइंड इज अ थिंग which does not vary, which doesn't vary person to person, person to person. जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, ऐसी बात जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उसको हम वेल डिफाइंड बोलेंगे. अगर वेरी कर जाएगा दैट मीन्स इट विल नॉट बी वेल डिफाइंड. सो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा और कुछ नहीं है बेटा. एग्जाम्पल से ही आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ आएगा. सेट क्या है बेटा? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. नाउ द मेन थिंग इज वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabet. Collection of vowels of English alphabet. ये हमने किसी से पूछा, कोई भी क्या बोलेगा? What is the collection of this? You will say, sir, A, then E, then I, then O, then U. हर कोई यही बोलेगा because vowels होते यही है. तो this is well defined. ये well defined है, ये person to person vary नहीं कर रहा. आपसे पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे, तो everyone will say that A, E, I, O, U. Now, not well defined. Not well defined का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, not well defined का मैं तुमसे बोलता हूँ collection of 10 most explosive batsmen of the world. Collection of 10 most explosive batsmen of the world. तो हिटर बैट्समैन. सो अब यहाँ पर पर्सन टू पर्सन बात वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी. मेरे हिसाब से इन 10 में कोई और 10 आएंगे, आपके हिसाब से कोई और 10 आएंगे, किसी और के हिसाब से कोई और 10 आएंगे. सो दिस थिंग विच आई हैव रिटन, दिस थिंग इज नॉट वेल डिफाइंड. दिस थिंग इज नॉट वेल डिफाइंड. और वी कैन से सपोज कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मूवीज ऑफ अक्षय कुमार. दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Suppose I am saying collection of odd numbers. Collection of odd numbers वो well defined में आएगा. Collection of odd numbers. अब odd number सबको पता है. Odd number क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 up to so on. ये क्या है? This is well defined. This is not well defined. So the collection of well defined objects, only then we can say that this is a set. So this was the definition of set and all about the main thing well defined. Now this was the example of set. Collection of English vowels of English alphabet and collection of odd number, even number. Now I'm moving forward. The second thing
which is there is belongs to. The term belongs to, what does this mean? This is a sign like this. This is a sign. This is the sign of belongs to in set theory. वैसे इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, बट इन सेट थ्योरी दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू. सो इसका क्या मतलब है? मैंने भी बोला था कलेक्शन, सपोज एक सेट लिया मैंने वी क्या था? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. Then I will say A belongs to V. This is an element. This is a set. Set को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सेट को हम यूजुअली ज्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट करते हैं बेटा. ज्यादातर, हमेशा नहीं कह रहा, अगर जरूरत है तो देखेंगे, लेकिन यूजुअली वी यूज टू डिनोट द एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर्स एंड element can be number also and set by capital letters. A belongs to V. Here A is element and V is a set. Suppose करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L, तो L में आएगा L does not belong to V, क्योंकि L जो है वोवल नहीं होता. तो L ये है belongs to को कट कर दिया, that means not belongs to. ये साइन है not belongs to का, not belongs to. तो this was all about belongs to. बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है देन दिस इज द साइन बिलोंग्स टू, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू. नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. How to represent a set? Set can be represented in two ways. The first is roster form. That is, और हम इसको यही बोलते हैं tabular form भी बोलते हैं इसको. This is also called tabular form. And the second is set builder form. फॉर्म. वन बाय वन दोनों पे आएंगे. सबसे पहले रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या कहती है? सेट लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है? राइटिंग द एलिमेंट्स. सुन लो, राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास. राइटिंग द एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द कर्ली ब्रेसेस. दैट मीन्स सपोज करो, अभी मैंने आपसे बोला था कि सेट ऑफ वॉवल्स, तो वी विल राइट A, E, I, O, U. Suppose this is set A. So how to represent the set? Like this. I will write all the elements separated by commas within the curly braces. Only curly braces will be there. No other brackets. Only curly brackets. Curly brackets represent the set. This is the roster form of a set. Suppose one more example, I am taking set B, that is 1, 3, 5, 7, 9 up to so on. Suppose one more example, I am taking C. Set C is equals to 2, then 4, 3 कर लो, यहाँ पे even चल रहा है, 3, then 6, then 9, then 12, then 15. I have written 3 sets. All the 3 sets representation is roster form. Now I am coming to set builder form. Set builder form को ऐसा होता नहीं है, बस बोल देते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ लैंग्वेज फॉर्म. ऐसा कोई स्पेसिफाई लैंग्वेज फॉर्म बोलते हैं इसको. लैंग्वेज फॉर्म मतलब all the elements will be possessing a certain condition. All the elements of the set will be possessing some condition. तो इसको हमें सेट को we have to write in a language form. We have to build a set. Suppose करो, this is the set. I have to write it in set builder form. So what I will do, first of all I will name the set. Set is A equals to. तरीका क्या है? तरीका समझेंगे ध्यान से. First of all I will take an element, variable मतलब जो चेंज करेगा अपने आप को. X.
सच दैट, ये लिखने का तरीका है सेट बिल्डर को, हमेशा वी विल टेक एन एलिमेंट एक्स और ए और बी और सी व्हाटएवर इट इज, व्हाट यू वांट. तो a इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉइंट x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. Set of point x such that x is a vowel of English alphabet. This is the set builder form of this set. अगर सपोज करो मुझे ये सेट नहीं पता, ये सेट पता है और मुझसे कह रहे हैं कि लिखो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वॉवल्स, तो a, e, I, o, u. I will get this set. This is the set A. Now other example, set B. This is the set B. 1, 3, 5, 7, 9 up to so on. तो what I will do, I will write, सपोज मैंने यहाँ y कर लिया, सेट ऑफ पॉइंट y, x भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये डिफरेंट एग्जांपल हो गया. सेट ऑफ पॉइंट्स y सच दैट अब ये है 1, 3, 5, 7, 9, ये दिख रहा है कि ये है ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या है, ऑड है और नेचुरल नंबर. तो वी विल से दैट y इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. y इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ये जो y है ये क्या है, ये जो मैंने दिया है b इज द सेट ऑफ पॉइंट y सेट. अब अगर मैं इस सेट को लिखता हूं रोस्टर फॉर्म, क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन, द सेम सेट b. नाउ सपोज आई एम राइटिंग सेट c. अब सेट c जो है, अब कभी कभी ये तो सिंपल से एग्जांपल्स लिए थे, अब 3, 6, 9, 12, 15 इसमें हमें थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा. क्या देखना पड़ेगा कि ये किस, मैंने बता था ऑल द एलिमेंट्स विल बी पोसेसिंग सम कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कंडीशन, तो यहां पर कंडीशन क्या दिख रही है 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15. ये 3 के मल्टीपल्स हैं. तो आई एम राइटिंग सेट ऑफ पॉइंट्स z सच दैट z इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो z इक्वल टू 3n. सेट ऑफ पॉइंट्स z सच दैट z इक्वल्स टू 3n. बट अगर मैंने z इक्वल टू 3n कर दिया तो यहां पर मुझे n को बताना पड़ेगा, n क्या है यहां पर, n को मुझे बताना पड़ेगा n है क्या यहां पर. ठीक है, तो बट आई विल राइट दैट n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, यहां पर लिखना पड़ेगा n इज अ नेचुरल नंबर. अभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर है तो n 1 हुआ तो 3 बन गया, ठीक है, n 2 हुआ 6 बन गया, 3 हुआ 9 बन गया, 4 हुआ 12 बन गया, 5 हुआ 15 बन गया. लेकिन n 6 भी तो हो सकता है, n 7 भी तो हो सकता है. अगर मैंने n को 6 या 7 या 8 या मोर देन 6 लिया नंबर, तो जो एलिमेंट है वो सेट से बाहर चले गए. कंडीशन डालनी पड़ेगी क्या, दैट जो n है वो लेस देन इक्वल टू 5. नाउ अब अगर मैं इस सेट को देखता हूं, तो z इक्वल टू 3n, n नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, तो n कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, मल्टीपल ऑफ 3, so I will get this. So this was all about representation of set, how to represent the set, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. ये एक एग्जांपल के थ्रू दोनों को पैरेलल चलाया ताकि आपको दोनों फॉर्म अच्छे से समझ में आए, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. आगे चलते हैं बेटा, कुछ एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करने वाले. देखो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिलती है तो उसको रोस्टर में चेंज करना आसान होता है बेटा. सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करना आसान होता है. जैसे मैंने एग्जांपल, मान लो एग्जांपल लेता हूं, मैं तुमसे बोलता हूं सेट बिल्डर टू रोस्टर. तो मैंने सेट ऑफ पॉइंट लिखा, सेट ऑफ पॉइंट x, एक सेट लिया a, सेट ऑफ पॉइंट x सच दैट x इक्वल्स टू 2 to the power n, where n is a natural number और n लेस देन 3 है ओनली. अगर मान लो ये है सेट, सपोज करो ये है रोस्टर, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, मुझे चाहिए रोस्टर फॉर्म. तो आई विल राइट सेट a इक्वल्स टू, आई विल गो n इज लेस देन 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज 1, तो 2 to the power 1 2, देन आई विल टेक n इक्वल टू 2 4. n को 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि n पर यहां पर इक्वल नहीं है. सपोज आई एम मेकिंग इक्वल, यहां पर इक्वल है, देन आई विल टेक 3 8, उससे आगे मुझे जाना नहीं, n लेस देन इक्वल टू 3. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करना आसान है, बच्चे फॉर्मूला वगैरह देके कर ही लेते हैं. बट थोड़ा सा अगर मुश्किल होता है तो वो होता है इसका रिवर्स मतलब रोस्टर टू सेट बिल्डर. उसमें बच्चे कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं. सेट बिल्डर, सॉरी, रोस्टर टू
set builder. Roster to set builder. Now, suppose I am taking A equals to 5, then 25, then 125, then 625. This is the set. I am writing the set A equals to set of point x such that x equals to पैटर्न को पहचानो. पैटर्न क्या है? 5, then 25, then 125, then 625. That means x equals to 5 to the power n. X equals to 5 to the power n, where n is a natural number. Where n is a natural number. And where n is a natural number. कंडीशन क्या है? 625 5 की पावर 4 पे जाता है. 1 2 3 4. So n is less than equal to 4. So in this way we can convert the different sets. This is the roster form and this is the set builder form. Now moving forward. So अभी तक क्या हमने सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड टर्म क्या होती है, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ आई एम कमिंग टू टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट में मेनली सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज द सेट हैविंग नो एलिमेंट. हैविंग नो एलिमेंट. नोटेशन इज फाई, और एक सेट बनाया उसको छोड़ दिया, एलिमेंट लिखा ही नहीं उसके अंदर. दिस इज द नोटेशन फाई और दिस नो एलिमेंट. सेट हैविंग नो एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. नोटेशन में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, 5 बनाते हैं उसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं, ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. या तो 5 बनाओ या सिर्फ ब्रैकेट लगाओ, कुछ मत लिखो. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ सेट ऑफ पॉइंट x such that x is less than 4, x is more than 3, x is a natural number. अगर मैं इस सेट को मान लो A मानता हूं, इफ आई एम राइटिंग दिस सेट, तो x 3 से 4 के बीच में है, मतलब 3.1 3.2 3.3 ये सब होंगे, लेकिन x क्या नेचुरल नंबर है. इसका मतलब इस सेट में यू आर नॉट एबल टू राइट एनी एलिमेंट. ये सेट A क्या है? ये है. या फिर वी कैन से दैट A क्या है? वो फाई है. वो क्या है? फाई है. फॉर अदर एग्जांपल देखो, सेट B सपोज करो मैंने लिया है, सेट ऑफ पॉइंट x सच दैट x square plus 4 equal to 0, x is a real number. x is a real number. अब ये कह रहा है कि B में ऐसे x आ रहे हैं, B में ऐसे x आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अगर x square plus 4 0 है तो x square हो गया -4. तो we are not able to find no real x. No real x are possible. No real x are possible. So I will write that set B is equal to what? x रियल नंबर है, इसका आंसर कोई आ नहीं रहा, तो सेट B क्या है? एम्प्टी सेट है. या फिर we can say that it is 5. So today we have done only one type. Rest of the types will be discussed in the next video. हम देखेंगे हमने किया कि आज हमने किया सेट. व्हाट इज सेट? उसमें वेल डिफाइंड किया, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आईज, उसमें 2 फॉर्म्स आई, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को हम टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं. आफ्टर दैट हमने कुछ क्वेश्चंस किए, हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर. फिर टाइप्स में हमने सिर्फ एक टाइप्स किया अभी, वो है एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट क्या होता है? वो ये है बेटा. विद एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड. सो टिल नाउ टुडे वी विल डू ओनली, यहाँ तक करेंगे बेटा बस सिर्फ, बाकी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.